موٹر وے زیادتی کیس کا ایک افسوسناک ایک واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے. کیس کو ٹریس کیسے کیا گیا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ٹول پلازا سے جو ہی آپ گزرتے ہیں تو لیفٹ پہ آپ دیکھیں تو گھنا جنگل ہے, تو وہاں پہ ان کی گاڑی پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئی تھی. دو ملزمان جن کا بعد میں ایک شفقت بگا اور دوسرا عابد ملی ریناؤنڈ ہے, تو انہوں نے آ کے بذریعہ اسلحہ اس کو شیشے توڑ کے اس کو اس میں سے نکالا. اس کے ساتھ بچے بھی تھے, تو اس کے ساتھ جو ہے زیادتی کی انہوں نے بچوں کے سامنے. بڑا اندوہناک واقعہ تھا. اچھا, یہ موٹر وے زیادتی کیس کتنے دن چلا تھا اور کب تک اس کا فیصلہ آیا تھا اور فیصلے میں کیا کہا گیا تھا؟ 9 سپٹمبر 2020 کو یہ وقوع ہوا تھا اور 20 مارچ 2021 کو اس کا ڈیسیژن ہوا تھا. جہاں تک یاد ہے کہ یہ ڈولفن پہلے پولیس پہنچی تھی وہاں موقع پہ, تو انہوں نے اس کو خاتون جس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا بڑی صدمے میں تھی, انہوں نے تسلی دی اور یہ پھر واقعہ رپورٹ ہوا. کیس کے بعد سے لے کے فیصلہ ہونے تک کیا کیا ایویڈنسز کلیکٹ کیے گئے تھے اور کن مراحل سے گزر کے کتنی مشکلات تھیں, کن چیلنج کو دیکھا گیا اور اس کے بعد ایک یہ جو ملزم تھا عابد ملی, اس کے خلاف آلریڈی ایک مقدمہ 2012 میں ہوا, تو اس کا چونکہ پی ایف ایس اے میں ریکارڈ موجود تھا وہ میچ کر گیا. ملزمان نے اپیل دائر کی اور اب آ کے اس اپیل کو بھی خارج کیا گیا. یہ اس کے اندر کیا چیزیں سامنے آئی؟ 2021 سے لے کے آج 2026 ہے, تقریباً 5 سال بعد ان کی اپیل لگی ہے, تو اپیل میں بھی فیٹ وہی رہی ہے جو ٹرائل کورٹ کی تھی. ارشد بھٹا صاحب تھے, سیشن جج ATC 1 کے جج تھے, ان کی کورٹ سے ہوا تھا. اچھا, اس کے اندر آپ لوگوں کی ٹیم نے کتنی محنت کی اور ساری آپ کے انڈر ساری ٹیم کام کر رہی تھی؟ اس کو ہیڈ کر رہے تھے شیخ سعید صاحب تھے, اس کے ساتھ اصغر صاحب تھے, آذر صاحب تھے, ڈوگر صاحب, اور یہ 4-5 لوگ, بٹو صاحب بھی شیخ تھے. ان کی ہم نے ٹیم بنائی تھی اور اس میں خاتون کا FIR میں نام بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے عامر چاند خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان پوڈ کاسٹ. خوش آمدید کہتے ہیں آج آپ کو ایک نئی ایپیسوڈ کے اندر, اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے اندر ہونے والے ایک افسوسناک واقعے کے اوپر, جو کہ 2020 9 ستمبر کو رونما ہوا اور موٹر وے زیادتی کیس کے نام سے یہ وائرل ہوا. اس کیس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اب کیس یہ مکمل ہو چکا ہے, ملزمان کو سزائیں ہو چکی ہیں, اور اس سارے کیس کو جو ہینڈل کیا وہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رانا محمد عارف کمال نون اور ان کے ٹیم نے کیا. میرے ساتھ موجود ہے رانا محمد عارف کمال نون, جو کہ سابق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اور سابق پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر بتائیے گا کیسے مزاج ہے اور ملتان کے اندر آپ تشریف لائے ہیں, کس طرح آپ نے پایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان کا میں ہوں, تشریف تو یہیں پہ ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن میں 2019 سے 22 تک پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تھا. سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں, ایک افسوسناک ایک واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے, تو آپ اس وقت پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تھے, تو سب سے پہلے اس کیس کو ٹریس کیسے کیا گیا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, یہ ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی؟ اب تو سارا کیس کھل کے سامنے آ چکا, آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہے اس کو. بالکل, اب تو تقریباً میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ پہ یہ آ چکا ہے. یہ رات کے پچھلے پہر تقریباً کوئی 3 بجے کا وقت تھا. ایک جو خاتون تھی یہ ڈیفینس سے واپس گجرانوالہ جا رہی تھی, تو اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا. یہ اس وقت جو سیالکوٹ موٹر وے ہے, یہ اس وقت ابھی فنکشن نہیں ہوئی تھی لیکن بن چکی تھی. ٹھیک ہے. ٹول پلازا سے جو ہی آپ گزرتے ہیں تو لیفٹ پہ آپ دیکھیں تو گھنا جنگل ہے, تو وہاں پہ ان کی گاڑی پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئی تھی. یہ پھر تقریباً گاڑی میں انہوں نے کالز بھی کی, اپنے کسی رشتہ دار کو بلایا وہاں سے, لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے 2 ملزمان جن کا بعد میں ایک شفقت بگا اور دوسرا عابد ملی ریناؤنڈ ہے, تو انہوں نے آ کے بذریعہ اسلحہ اس کو شیشے توڑ کے اس کو اس میں سے نکالا. اس کے ساتھ بچے بھی تھے, تو اس کے ساتھ جو ہے زیادتی کی انہوں نے بچوں کے سامنے. بڑا اندوہناک واقعہ تھا. جب یہ اطلاع ملی پولیس کو, تو پولیس کے اس سے پہلے مجھے جہاں تک یاد ہے کہ یہ ڈولفن پہلے پولیس پہنچی تھی وہاں موقع پہ, تو انہوں نے اس کو خاتون جس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا بڑی اس میں تھی, صدمے میں تھی, انہوں نے تسلی دی اور یہ پھر واقعہ رپورٹ ہوا. اور اس میں سب سے جو اہم بات ایک تھی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہمارا ایک ایکٹ ہے وٹنس پروٹیکشن ایکٹ, جس میں مخصوص حالات میں چاہے گواہ ہو, مدعی ہو, اس کی شناخت ہائیڈ کر کے چھپا کے کارروائی کی جاتی ہے.
मैं समझता हूँ कि इस मोटरवे केस में फर्स्ट टाइम इस खातून की जो आइडेंटिफिकेशन है उसको हाइड रख के ये प्रोसीडिंग की गई थी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। मेरे इल्म के मुताबिक बिल्कुल ये पहली थी और अभी तक कोई ऐसा दूसरा वाक़या नहीं जहाँ पे किसी विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन को हाइड रख के कार्रवाई की गई। ये पहला वाक़या था और बड़ा चैलेंजिंग था। जिस किस्म का घने जंगल थे और इसमें सारे मेथड यूज़ किए गए, चूँकि उस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने नोटिस ले लिया था। इसमें जियो फेंसिंग, IT का पूरा इस्तेमाल किया गया और इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक था शफकत बग्गा, उसके वालिद के नाम की उसकी सिम थी जियो फेंसिंग से, उसका नाम पहले आया। और इसमें जो एक और अहम बात इसमें मुकदमे में थी वो ये थी कि वो जो उसके ब्लड के निशानात थे इस पे शीशे जो स्क्रीन उसमें उससे, हाँ जी, उससे और फिर जो स्वैब लिए गए तो उससे ये मुकदमे को काफ़ी सपोर्ट मिली और जिससे ये मंतकी अंजाम तक पहुंचा। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों की टीम ने कितनी मेहनत की और सारी आपके अंडर सारी टीम काम कर रही थी, तो क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, किस तरह से आपने पूरी टीम बनाई और कैसे चले थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी टीम थी उस वक्त, प्रोसिक्यूशन की जो टीम थी, उसमें इसको हेड कर रहे थे शेख सईद साहब थे, उसके साथ असगर साहब थे, आज़र साहब थे, डोगर साहब और ये 4-5 लोग, भट्टो साहब भी शेख थे। इनकी हमने टीम बनाई थी जो सारे मामलात को देख रही थी। चूँकि ये 2006 का जो एक्ट है हमारा प्रोसिक्यूशन एक्ट, ये जब आया तो इसने पुलिस और जो प्रोसिक्यूशन का चोली दामन का साथ है, चूँकि दोनों का मकसद एक ही होता है कि सही कसूरवार तक पहुँचा जाए और बेगुनाह को रिलीफ मिले। तो इस हवाले से हमने एक नोटिफाई किया ये 4-5 प्रोसिक्यूटर्स को। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑफ इंक्वायरी दी और ये जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसकी आइडेंटिफिकेशन को हाइड में रख के ये कार्रवाई की। और इसमें खातून का FIR में नाम भी नहीं। अच्छा। सबसे पहले वो जो पुलिस कार्रवाई होती है उसी में जो आई होता है वो लिखता है कि जनाब ये जो है विक्टिम है, ये अपनी आइडेंटिफिकेशन जाहिर नहीं करना चाहती, तो वो एक रिपोर्ट बना के भेजता है। वो हमारा एक बोर्ड, डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है, उसमें जाता है, फिर वो रिस्क असेसमेंट ऑफिसर है उनके पास जाता है। तो फिर इस हवाले से पूरी ये प्रोसीडिंग के बाद ही ये प्रोसीडिंग मुकम्मल होती है इसकी। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के अंदर केस के बाद से लेके फैसला होने तक क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे और किन मराइल से गुजर के कितनी मुश्किलात थी, किन चैलेंज को देखा गया और उसके बाद फैसला? मैं समझता हूँ कि इसमें बाकी तो एविडेंस पुलिस ने, उस वक्त जो पुलिस थी, इनाम गनी साहब IG थे और उसके साथ शायद पहले शहजादा सुल्तान साहब DIG और फिर जीशान साहब थे SP। जीशान साहब अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और उनके साथ जो उनकी टीम थी IOs की, इन्होंने काफ़ी मेहनत की। जितने भी ये जियो फेंसिंग के हवाले से, PFSA के हवाले से, ये सारी उन्होंने एविडेंस इकट्ठी की और फिर PFSA में स्वैब्स गए तो वो, और जो एक ये जो मुलजिम था आबिद मली, उसका DNA टेस्ट, उसके खिलाफ ऑलरेडी एक मुकदमा 2012 में हुआ था। तो उसका चूँकि PFSA में रिकॉर्ड मौजूद था वो मैच कर गया। ठीक है। और इसमें फिर आसानी हुई इसको तकमील तक पहुंचाने में। लेकिन एक बात मैं उस वक्त भी कहता था, सारे जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं और सवारे होते हैं, कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मीडिया और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, बाज़ औक़ात वो मसाइल, और इस मुकदमे में भी ऐसे हुआ। चूँकि अभी जब उसका मैच हुआ तो कहीं से लीक हो गया कि जनाब ये एक आबिद मली नामी मुलज़िम है, उसका नाम मैच कर गया, तो वो उसने फिर काफ़ी उसको ढूंढने में, उसको दोबारा गिरफ्तार करने में काफ़ी मुश्किलात पेश हुई। के अंदर तो अगर चीज़ लीक हो रही है तो मीडिया तो इसको लीक नहीं कर रहा, वो उस डिपार्टमेंट के अंदर से लीक होकर मीडिया तक पहुंच रही है, तो उस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, शायद उन लोगों को PFSA में या उस दूसरी जगह पे ऐसा इदराक ही नहीं था कि ये हम क्या कर रहे हैं, कि इससे कितना बड़ा हमें नुकसान होगा। तो इस हवाले से ओवरऑल भी ये अगर कोई मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है तो उसको मीडिया पे डिस्कस करना, और फिर मैं समझता हूँ कि वो तफ्तीश में बहुत बड़ी रुकावट होती है। तो ये मैंने भी ये किया था, स्पेशली IG साहब को मैंने कहा था कि जो मुकदमा ज़ेर तफ्तीश हों उसको मीडिया पे डिस्कस ना किया जाए। ये बल्कि हमें फेस करना पड़ा एक कसूर में, ज़ैनब के बाद एक और बच्ची के साथ रेप हुआ तो बाद में उसको ये उसमें भी एक हमें ये
आया था मसला, जिसमें पहले ही नाम चीज़ें सामने आ गई। चीज़ें सामने आ गई, तो फिर वो लीगली भी बहुत ज़्यादा हमें हर्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। अच्छा, ये मोटरवे ज़्यादती केस कितने दिन चला था और कब तक इसका फैसला आया था, और फैसले में क्या कहा गया था? 9 सितंबर 2020 को ये वकूआ हुआ था और 20 मार्च 2021 को इसका डिसीजन हुआ था। अरशद भुट्टा साहब थे, सेशन जज ATC 1 के जज थे, उनकी कोर्ट से हुआ था। इसमें डेथ की पेनल्टी मिली थी, लाइफ भी हुई थी, जुर्माना भी हुआ था, चूँकि इसमें दफात डकैती के भी थे, गैंग रेप के भी थे, अगवा पर एतवान भी था, हर्ट के भी थे, काफ़ी इसमें दफ़ा, जिस वजह से फिर इसको ये हुआ। तो उसके बाद मुलजमान ने अपील दायर की, तो और अब आके उस अपील को भी खारिज किया गया। ये इसके अंदर क्या चीज़ें सामने आई? 2021 से लेके आज 2026 है, तकरीबन 5 साल बाद उनकी अपील लगी है, तो अपील में भी फेट वही रही है जो ट्रायल कोर्ट की थी। अच्छा, एक केस अगर जैसे नॉर्मली एक केस है जिसको प्रोसिक्यूशन देख रही है, केस है नॉर्मल अगर देखा जा रहा है, तो ये 6 माह के अंदर ये काम मुकम्मल हुआ, जैसे आप कह रहे हैं मार्च 2021 में इसका फैसला हुआ। तो दूसरे केसेस अगर हम देखें तो वो कई साल चलते रहते हैं। इसके अंदर क्या वजूहत आप देखते हैं, कहाँ पे कमी है? बिल्कुल आपने ये सही पॉइंट आउट किया है। इसमें कुछ केसेस टारगेटेड केसेस बन जाते हैं, मीडिया भी उसमें इंटरेस्ट लेता है, हाई प्रोफाइल केस बन जाते हैं, फिर हमारे हाई अप्स और अरबाब इक़्तिदार इसमें फिर उसमें तवज्जो देते हैं, तो जिस वजह से फिर, और स्पेशली ये जो इसके ATA के हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में केस के ट्रायल्स बहुत जल्दी होते हैं, और ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स में ये डिले होती है। अब वो भी थोड़ा कम हो गई है, लेकिन ATA कोर्ट्स में ट्रायल जल्दी होता है। अच्छा, अब ये फैसला आया है, पॉजिटिव फैसला था, जो विक्टिम है उनको इंसाफ भी मिल गया। अब इसको इंटरनेशनली भी बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। एलोन मस्क ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है, तो उसको आप किस तरह देखते हैं और क्या समझते हैं कि आने वाले अगर इस तरह के खुदा ना खासा अगर कोई केसेस हैं या जो पहले चल रहे हैं केसेस, उनको भी इसी तरह से डील करके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए? बिल्कुल, ये स्पेशली इसके बाद एंटी रेप एक्ट भी आ गया है, उसमें स्पेसिफिकली एक यूनिट बनता है और यूनिट उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और फिर कोर्ट्स में उसकी अच्छी मतलब स्पीडी ट्रायल होते हैं। ये अच्छी बात है कि जराइम का सज़ाओं, अगर जराइम हों और उनकी सज़ाएं हों, खौफ की वजह से भी जुर्म कम होता है। ये डेटरेंस आनी चाहिए। जितनी सज़ाएं जल्दी होंगी, बर वक्त होंगी और सज़ाएं उनको मिलेंगी, तो मैं समझता हूँ जुर्म कम होगा। ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देंगे आखिर में, कि अगर किसी के साथ इस तरह के अंदरनाक वाक़यात होते हैं तो वो सामने आके पुलिस तक पहुँचे, ना कि उसको छुपाएं या इसको अपनी बदनामी का समझ? बिल्कुल, ये आपका वैलिड पॉइंट है। स्पेशली आप देखें ना, 376 इस किस्म के जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है, अल्टीमेट इसका एंड जो होता है वो हमेशा इसकी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता। उसकी वजह यह है कि ख़वातीन की कई मजबूरी होती हैं काफ़ी, जिस वजह से अपने बयान चेंज कर लेती हैं और उसमें सज़ा नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि उनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। अगर उनके साथ कोई वाक़या हुआ है तो उसको उनके मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे राना मोहम्मद आरिफ कमाल नूर साहब, और इससे बात हुई मोटरवे केस के हवाले से, और ये प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे उस वक्त, और इनकी जो टीम थी उनकी मेहनत के साथ और पाकिस्तान की अदलिया ने जो इंसाफ किया, उसके बाद आज विक्टिम्स को भी ये इंसाफ मिल चुका है और पूरी दुनिया के अंदर भी इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आज की गुफ्तगू आपको पसंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।